Okay, welcome to Core Channeling Power of Now, Part 3. आगे वो कहते हैं, but there are, as the one known as T2 said, but there are so many different ways of coming into a state of remembrance. Each of you has 5 senses in the physical. The example somebody gave of washing the hands and becoming aware of each characteristic and nuance of feeling in the experience operates on the principle of using the gifts that are given to you. Each sense is evocative. Each sensibility may be triggered, tuned, and even transformed by choosing to be alert, to be watchful, to be attentive, to pay attention to the little things. This instrument is fond of saying the smaller the thing, the more common and everyday, the more sacred it seems to her. And while we find everything equally sacred, we understand what this instrument is attempting to express. Let me take this first. लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, स्मरण की स्थिति में आने के कई अलग अलग तरीके हैं. आप में से प्रत्येक की शारीरिक रूप से 5 इंद्रियां हैं. और जैसा कि किसी ने कहा कि हाथ धोने और उस अनुभव में प्रत्येक विशेषता और भावना की बारीकियों से अवगत होने का जो उदाहरण दिया, वो आपको दिए गए उपहारों का उपयोग करने के सिद्धांत पर काम करता है. प्रत्येक भाव विचारोत्तेजक है. प्रत्येक संवेदनशीलता को सतर्क रहने प्रत्येक संवेदनशीलता को सतर्क रहने, चौकस रहने, छोटी चीज़ों पर ध्यान देने का चयन करके ट्रिगर किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है और यहाँ तक कि रूपांतरित भी किया जा सकता है. मतलब आपको इस पल में अपनी 5 इंद्रियों के समेत जीना है और 5 इंद्रियों का इस्तेमाल करते हुए ईश्वर को याद करना है. That's what I understood. और इस क्षण में पूरी तरह से जीना है. ये उपकरण कहने की शौकीन है कार्ला कि जो चीज़ जितनी छोटी होती है, जितनी अधिक सामान्य और रोज़मर्रा की होती है, उतनी ही अधिक पवित्र लगती है उसे. और जबकि हमें हर चीज़ समान रूप से पवित्र लगती है, पर हम समझते हैं कि ये उपकरण क्या कहने की कोशिश कर रही है. Consider the act of washing the hands, of emptying the bowels, and rising from the natural function to wash the hands and go forth to meet the day. It must be done every day, perhaps more than once, but certainly in the morning. For each of you in this life sentence of natural function must be attended to for the sake of the body. But that is a heavy energy. That is a grudging life when one has to perform natural functions. मतलब कि हाथ धोना, नहाना, बाथरूम जाना, टॉयलेट जाना, ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत ही आम चीज़ें हैं जो आप रोज़ करते हो. और इन चीज़ों को रोज़ सुबह जैसे नहाना, ब्रश करना, बाथरूम जाना, पेट साफ करना, ये सब तो रोज़ की चीज़ें करनी ही करनी है और ये करनी ही हैं. लेकिन और कई बार, एक बार नहीं 2-3 बार आपको हाथ धोना पड़ता है, कई बार 2 बार नहाना. कुछ लोगों की आदत होती है दिन में 2-3 बार नहाते हैं. तो आप सभी के लिए ये अपने शरीर का, क्योंकि आपको इस धरती के ऊपर जीने के लिए एक ही घर दिया है भगवान, और वो है आपका ये शरीर. ये घर नहीं, ये घर. तो इस घर को अगर आप साफ रखते हो तो इस घर को भी साफ रखना आपका काम है. इस घर की मरम्मत करते हो तो इसकी भी मरम्मत करना और सुखी रखना आपका काम है. तो ये सारे काम आपको रोज करने ही पड़ते हैं अपने शरीर के लिए. लेकिन जब आप ये कहते हो, अरे करना पड़ेगा, मुझे नहीं करना, क्या रोज रोज नहाना पड़ता है, मुझे हाथ नहीं धोने, क्या हाथ धोने पड़ते हैं, मुझे बाथरूम नहीं जाना. जब आप इस तरह से सोचने लगते हो तो वो एक बोझ बन जाता है. बोझ नहीं बनाना है अपनी जिंदगी को. आपकी जिंदगी बोझ है या नहीं, ये सोचना आपका अपना काम है.
However, if one enters into those natural functions and the natural ways of cleanliness and preparing the day with every sense awake, each humble, necessary chore can become a symbol in the physical of processes which are moving on within the inner being, processes that move from nuance to nuance and half tone to half tint. And the ability to enter into the joy of removing the old from the system and clearing it for the day, and then rising and washing the hands and blessing that event, experiencing that magical flow of water as it cleanses, experiencing all the feelings that are attendant upon the cleansing, the pleasant smell, the texture of soap, the texture of the towel, attending to each of these to see the beauty in them, softens and gentles the harsh edges of necessity into things of unutterable beauty. तो वो कहते हैं कि इस तरह से आपको अपने ये रोज़मर्रा के काम अंधाधुंध नहीं करने हैं, बेहोशी के आलम में नहीं करने हैं। ऐसे नहीं करना है कि हाँ करना है तो कर लिया, हाँ हाँ खा रहे हैं खाना, देख रहे हैं टीवी, नहीं। आपको एक-एक पल को पूरी तरह से उसका एहसास करना है, उसको एन्जॉय करना है। आप साबुन धो रहे हो तो ठीक से अपने हाथ धो, नाखून साफ करो, उस साबुन की स्मेल को का एहसास करो, उसका आपके शरीर के ऊपर फ़ील का एहसास करो। फिर हाथ जब धोते हो तो पानी, एक उदाहरण है, पानी गिर रहा है तो पानी आपके शरीर को, आपकी चमड़ी को कैसा महसूस हो रहा है? ठंडा, अच्छा लग रहा है, साबुन जा रहा है, वो साबुन पूरा धुल गया, आपके हाथ साफ हो गए। फिर अपने हाथों को आप तौलिए से पोंछते हो, तो वो कैसे नर्म तौलिया आपके हाथों पर कैसे लगता है? हाथ गीले से सूखते हुए आपको कैसे लगते हैं? एक-एक पल को आपको पूरी तरह से जीना है। छोटे से लेके बड़े तक ऐसी प्रक्रियाएं जो सूक्ष्मता से सूक्ष्मता और आधे स्वर से आधे रंग की ओर बढ़ती हैं, आधे राग की ओर बढ़ती हैं, और सिस्टम से पुराने को, अपने जिंदगी के सिस्टम से पुरानी चीज़ें जिसका इस्तेमाल नहीं है, घर से पुरानी चीज़ें जिसकी ज़रूरत नहीं है को निकाल कर इसको साफ करना है। मतलब अपने सिस्टम, शारीरिक सिस्टम के पेट को साफ करना है और उठकर हाथ धोकर अपनी ज़िंदगी में काम पर जिस तरह से चलना है, एक-एक पल को, मतलब आप, अब ये यहाँ पर इसकी बात कर रहा है तो मैं कैसे बोलूँ कि आप टॉयलेट पे भी बैठे हो ना, तो वो पेट भी जो साफ हो रहा है तो खुद को आपको ब्लेस करना है, खुशी महसूस करनी है कि हाँ मेरा सिस्टम साफ हो रहा है, हो रहा है, आराम से हो रहा है। ये बहुत बड़ी नेमत होती है उन लोगों के लिए जिनका सुबह उठते ही सबसे पहले पेट साफ हो जाता है। उन लोगों से पूछो जिनका नहीं होता, वो क्या बीमारियों से या मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं। तो ये जब आप अपनी रोज़मर्रा की ये ज़िंदगी बड़े प्यार से, आराम से करते हो, खुशी में, और उसको एक-एक पल का मज़ा लेकर करते हो, तो उसमें एक अपना आनंद होता है, सुंदरता होती है, उसको बोलते हैं जीवन। And as each tiny thing begins to become open to that view, the sacredness of things emerges and lifts one up into the glory of the illusion of incarnation. Each moment is a bounty, a feast, a banquet. It is brimming with information. It is whole and perfect and one. The only way to come into that sense of consciousness is to learn the attentiveness to the sacredness of everyday things. जैसे जैसे प्रत्येक छोटी चीज उस दृश्य के लिए खुलने लगती है, चीजों की पवित्रता उभरती है और व्यक्ति को जिंदगी के भ्रम की महिमा में ऊपर उठाती है। सॉरी, कॉफी ठंडी हो गई मेरी, जल्दी पी लूं, खत्म करूं। प्रत्येक क्षण एक उपहार, एक दावत, एक भोज है। ये जानकारी से भरपूर है, ये संपूर्ण और एक है। चेतना की उस भावना में आने का एकमात्र तरीका रोजमर्रा की चीजों की पवित्रता पर ध्यान देना सीखना है।
Within a sacred space, with altars and pews and vaulted ceilings and stained glass windows, it is easy to feel that one is in a sacred place. Yet every child of dust within the illusion of earth stands on holy ground, whether they are starving or fed, whether they are cold or clothed, whether they are sick or healthy, no matter what state or condition they may be. They stand upon holy ground and they themselves are holy. And you, child of dust, also are infinitely, ineffably holy. You are a sacred essence of the divine. वो कहता है कि एक मंदिर में, चर्च में, जब वहाँ पर सभी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, सभी उसको याद कर रहे हैं, वहाँ इतनी पवित्रता है, सुगंध है, सुंदरता है, ईश्वर आपके सामने है, ईश्वर की मूर्ति या जो भी कह लो, यहाँ पर तो वो चर्च की बात कर रहा है। ऐसे समय में ईश्वर को याद करना या उसके करीब खुद को पाना बहुत आसान है, लेकिन हर इंसान जो इस मिट्टी से बना है, इस धरती पर जीवित है, चाहे वो भूखा है या उसका पेट भरा हुआ है, अमीर है, गरीब है, ठंड में कुड़कुड़ा रहा है या गर्म कपड़े पहन के बैठा है, बीमार है या स्वस्थ है, हर इंसान जो है वो इसी मिट्टी का है। ये जो तुम्हारे माया जाल की मिट्टी है, ये माया जाल की धरती और इस धरती की मिट्टी उससे बना हुआ है। और जो कोई भी उनका उनकी ज़िंदगी के जैसे भी हालात हों, जिसमें वो इस धरती के ऊपर खड़े हैं या रह रहे हैं या जीवित हैं, वो अपने आप में पूरी तरह से पवित्र हैं। और साथ में आप भी इसी मिट्टी से बने हो, आप भी पवित्र हो, आप भी अनंत हो और अवर्णनीय पवित्र हो, अवर्णनीय हो। मतलब कि समझाया नहीं जा सकता कि आप कितने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, क्योंकि आप ईश्वर का हिस्सा हो। तो ये जो है, आप उस पवित्र ईश्वर का एक हिस्सा हो, उसका एक परमात्मा का पवित्र सार हो, ऐसा वो कह रहा है। How may one begin to experience this point of view? In some way, it becomes a matter of sheer discipline. There is a certain amount of what this instrument would call struggle involved in training the mind to come into a state of remembrance. There is much help which is available to those who wish to become present, and it is indeed a noble task to set for the self to become present. मैंने अभी ये करते करते अपनी कॉफ़ी पी। उस कॉफ़ी का मज़ा नहीं उठाया, उसके टेस्ट को अनुभव नहीं किया, पढ़ते पढ़ते मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई। ये इस पल में जीना नहीं है। खाना खाओ, कॉफ़ी पियो, कुछ भी करो तो पूरी तरह से करो। वक्त नहीं मिलता है, पर ठीक है, मैंने दोनों कर लिए काम, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया और मैंने साथ में करते हुए एंजॉय किया। It is not that one wishes to be without a context. We did not call you away from the world. अब एम्बुलेंस, आई होप कि आवाज़ डिस्टर्ब नहीं कर रही है आपको। ओ जा अब। It is not that one wishes to be without a context. We do not call you away from the world. We do not look down upon any part of the life lived by the ordinary human being. We do not suggest the need for retreat and alteration of the outer circumstances. Certainly, times of quiet, such as the one, as meditation, are extraordinarily helpful. When there is the sabbatical, that is, there is the opportunity to take stock, to express the self as a seeking entity rather than as one who must attend to the ordinary challenges of making a living and coping with the financial side of life. And yet, life for the most part is lived in the hurly-burly, in the spotlight of the passion play as the scenes upon the stage revolve. Passion, spotlight of the passion play too, as the scenes upon the stage evolve. Wow.
तो कोई इस दृष्टिकोण का अनुभव कैसे शुरू कर सकता है? कुछ मायनों में ये सरासर अनुशासन का मामला बन जाता है। स्मरण की स्थिति में आने के लिए मन को प्रशिक्षित करने में एक निश्चित मात्रा में संघर्ष शामिल होता है, जिसे ये उपकरण संघर्ष कहता है। संघर्ष शामिल होता है तो संघर्ष ही कहेगा। जो लोग उपस्थित होना चाहते हैं उनके लिए बहुत सहायता उपलब्ध है। उपस्थित मतलब उस पल में उपस्थित, इस पल में जीना। वो गाना है ना, इस पल का जीना फिर तो है जाना, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो, सही बोल रही हूँ मैं? इस पल में जीना और स्वयं के लिए निर्धारित करना, उपस्थित होना वास्तव में एक महान कार्य है। ऐसा नहीं है कि कोई संदर्भ के बिना रहना चाहता है। हम आपको दुनिया से दूर नहीं बुला रहे हैं, मतलब हम आपको ये नहीं कह रहे अपने दुनिया से दूर चले जाओ, कि जंगलों में चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, या अपने घर के हालात बदल दो, या घर से सबको निकाल दो, अकेले कमरे में बैठे रहो, या घर में कोई चीज़ें मत रखो। हम आपको ऐसा कुछ भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन अगर आप थोड़े समय के लिए रोज शांति से बैठ के ईश्वर को याद करोगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। जब विश्राम होता है तो जायजा लेने का, स्वयं को एक खोजी इकाई के रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है। मतलब कि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान लगा के बैठते हैं अकेले, चाहे आप आंखें बंद करके ऐसे करके भी ना बैठे हैं, आप सिर्फ ऐसे बैठे हैं और किसी बात के ऊपर आप सोच रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, एक टक सामने आपके कुछ भी हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि आपका ध्यान वहां नहीं है, आपका ध्यान यहाँ है, यहाँ है। और आप सोचे जा रहे हैं, उसको आंके जा रहे हैं, वो सही, वो गलत, मैं सही, मैं गलत, वो सही, वो गलत, या सही और गलत को छोड़ो, ईश्वर के नियमों के हिसाब से क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या मेरी सोच सही रास्ते पर है? इस तरह से जब आप किसी चीज़ अपना उपचार कर रहे हैं, अपने मन का उपचार कर रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं, समझा मतलब सही सलाह दे रहे हैं, तो ऐसे में वो भी मेडिटेशन होता है और आपको वक्त मिलता है अपने शैडो सेल्फ को हील करने का, अपनी ज़िंदगी को समझने का, अपने आप को समझने का, क्योंकि ईश्वर को समझना सबसे पहले आपको समझना है। जब तक आप खुद को नहीं समझ जाओगे पूरी तरह, आप ईश्वर को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ईश्वर तो आपके अंदर है। तो जब आप खुद ही को नहीं समझ सके तो ईश्वर को क्या समझोगे? खुद ही को नहीं समझ सके तो ईश्वर को क्या समझोगे? फिर वो कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी और आपको ध्यान में बैठ के अपनी ज़िंदगी में जो छोटी-मोटी दिक्कतें आ रही हैं, अच्छी बुरी दोनों, जो अच्छी हैं वो भी, बुरी हैं वो भी, सिर्फ बुरी चीज़ों की या दिक्कतों की या परेशानियों की बात नहीं हो रही है। हर चीज़ को आपने एन्जॉय करना है और हर चीज़ पर मेडिटेट करना है। तो जैसे पा हमेशा समझाते हैं कि अच्छा कुछ हुआ है तो उसका उल्टा भी सोचो, बुरा कुछ हुआ है उसका उल्टा भी सोचो। और ज़िंदगी जो है वो जल्दबाजी में और फिर भी जीवन का अधिकांश हिस्सा आपाधापी में जुनूनी नाटक की सुर्खियों में जिया जाता है, क्योंकि मंच पर दृश्य घूमते रहते हैं। एक अनुभव गया, एक आया, एक गया, एक आया, वो तो चलता ही रहेगा। हर पल के आगे भी एक पल है, पीछे भी एक पल है। ऐसा एक गाना है ना, वो कौन सा गाना है गोलमाल फिल्म का? एक है, मुझे याद नहीं आ रहा। हर पल के आगे पल, पीछे पल, कुछ तो था। तो अपनी ज़िंदगी के ये छोटे-मोटे रोज़मर्रा की मुश्किलों से आपको निपटना है हँसी-खुशी से और सोच समझ के कि आप ईश्वर के बनाए हुए नियमों के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा, 4 बजने वाले हैं, तो जल्दी कर लूँ। वी गिव दिस इंस्ट्रूमेंट अ व्यू या इसको बाद में करूँ? नहीं, थोड़ा ही है, मतलब है 4 पैराग्राफ हैं। वी गिव दिस इंस्ट्रूमेंट अ व्यू ऑफ अ कंप्लीट लैक ऑफ लोकेशन। Picture, if you would, the sensation of weightlessness, of lack of input into any of the senses.
Lifted from the constant contact with the senses, one is left within a kingdom which is within. Within that inner kingdom of self lies the truth and a great deal of distortion. Where did that distortion come from? An entity is born into incarnation with certain preconceived distortions already. I will stop here. हम इस उपकरण को स्थान के पूर्ण अभाव का दृश्य देते हैं. यदि आप चाहें तो भारहीनता की मतलब कि आप वजन नहीं है, बिल्कुल हल्के हैं की अनुभूति किसी भी इंद्रिय में इनपुट की कमी की कल्पना करें. इंद्रियों के साथ निरंतर संपर्क से ऊपर उठकर पंखा लगाना. इंद्रियों के साथ निरंतर संपर्क से ऊपर उठकर व्यक्ति एक साम्राज्य में रह जाता है जो उसके अपने ही भीतर है. स्वयं के उस आंतरिक साम्राज्य के भीतर सत्य और बहुत सारी विकृति निहित है. यह विकृति कहाँ से आई? एक इंसान पहले से ही कुछ पूर्ण निर्धारित विकृतियों के साथ इस जिंदगी में पैदा हुआ था. क्यों पैदा हुआ था? क्योंकि पिछले जन्मों में आपने कुछ विकृतियां और कुछ धारणाएं अपने मन में जमा कर ली थी. Each of you has chosen a personality shell that is rich in gifts and in challenges. Each of you has scripted for yourself incarnational lessons which will occur thematically, repeatedly during the incarnation, teaching you the lessons that you have chosen and offering you the opportunities of service which you have hoped for. In this inner life, no mirrors exist, and it is exponentially more difficult to see the self clearly than when one is receiving information from the mirrors around one. So, while we value time spent in a complete inner search, we feel that the more efficient path in terms of the rapidness with which evolution may occur is an environment in which the inner life and the outer life marry. पहले इतना कर लेती हूँ. आप में से प्रत्येक ने एक व्यक्तित्व आवरण चुना है. जिंदगी, आपका शरीर, आपकी जिंदगी के सोल कॉन्ट्रैक्ट, आपके रिश्ते जो उपहारों और चुनौतियों से समृद्ध है. आप में से प्रत्येक ने अपने लिए एक ऐसी जिंदगी के पाठों की रचना की. सीखना क्या है? जो इस जिंदगी के दौरान विषयगत रूप से बार बार घटित होंगे. क्या आपने तय किया कि मेरी ज़िंदगी में मुझे ये सीखना है, तो इसके लिए ये कैटलिस्ट ऐसे ऐसे इस समय पर इस चीज़ का ऐसे कैटलिस्ट लगेगा. अगर मैंने सीख लिया एक बार में तो ठीक, अगर नहीं सीखा तो 2 साल बाद, फिर 5 साल बाद, फिर 1 साल बाद आपको वे पाठ पढ़ाएंगे जो आपने चुने हैं और आपको सेवा के वे अवसर प्रदान करेंगे जिनकी आपने आशा की है. आपके कैटलिस्ट और आपने जो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो पाठ लिखे हैं और उसके लिए जो कैटलिस्ट लिखे हैं वो. इस आंतरिक जीवन में कोई दर्पण मौजूद नहीं है, और जब कोई व्यक्ति अपने आसपास के दर्पणों से जानकारी प्राप्त कर रहा हो तो उसकी तुलना में स्वयं को स्पष्ट रूप से देखना बहुत अधिक कठिन होता है. मतलब आप 24 घंटे एक आईना लेके तो नहीं घूमेंगे, और आईना आपको सिर्फ आपका शारीरिक स्वतः दिखाएगा. आपके मन, दिमाग, आत्मा के परिसर का क्या, वो आप अपने सामने दूसरे लोगों में देखते हैं. इसने मेरा अपमान किया, वो मेरा आईना है. उसने मेरा क्यों अपमान किया? शायद मैं खुद अपना अपमान करती हूँ. मैं खुद अपना सम्मान पूरी तरह नहीं कर पाती, तो उसने भी मेरा अपमान किया. अगर मैं अपना सम्मान पूरी तरह से करूंगी तो किसी की हिम्मत नहीं होगी मेरा अपमान करने की. एक रैंडम एग्जाम्पल. तो दूसरों में अक्सर हम खुद को नहीं देखते. उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने, इसका क्या? उसने मेरे साथ ऐसा किया, इसका क्या? ये 3 का क्या? तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरे अंदर वो क्या कमी है? मुझे अपने में क्या सुधारने की ज़रूरत है? इसलिए जबकि हम पूरी तरह से आंतरिक खोज में बिताए गए समय को महत्व देते हैं,
हमें लगता है कि जिस तेजी के साथ विकास हो सकता है उसके संदर्भ में अधिक कुशल मार्ग एक ऐसा वातावरण है जिसमें आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन का विवाह होता है। तो मतलब कि जब हम अपने थोड़ा सा अपने लिए समय निकाल के अपने मन के अंदर खुद को खोजते हैं तो हमें अपना रास्ता सही से नजर आता है। अपने उच्च स्वतः को कहते हैं मुझे रास्ता दिखाओ, अपने ब्रह्मांड से अपने रचेता से कहते हैं मुझे रास्ता दिखाओ। और जिस तरह से उसके बाद हमें वो रास्ता दिखता है, मिलता है और हमारी उन्नति होती है एक ऐसे माहौल में और वातावरण में जिसके अंदर हमारी आंतरिक और बाहरी जिंदगी एक हो जाती है। जब हम अंदर कुछ महसूस करते हैं तो वो हमें बाहर नजर आता है। अगर हम अंदर अपने मन में प्रेम महसूस नहीं कर रहे हैं अपने लिए तो हमें बाहर से प्रेम मिलना मुश्किल है। Rather than fighting and dividing inner life from outer life and struggling to get more inner life, we would suggest every way which you may think of personally to stamp the outer with the inner and to relate the inner into the core, making every connection that you can, so that all of experience becomes one and the physical and the metaphysical becomes a dance for two that carries both the male and female aspect of living within one consciousness. हम ट्विन फ्लेम क्या होते हैं इसमें मैं ये समझा चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है सेशन तो मेरी सलाह है कि आप वो देख लें। यहाँ पर वो कहते हैं आंतरिक जीवन को बाहरी जीवन के साथ वो जो आपकी लड़ाई चलती रहती है ना, मेरे अंदर बाहर, ये जो विभाजन है कि मैं अलग हूँ वो अलग है, इस लड़ाई को खत्म करने की जरूरत है। इस विभाजन को खत्म करने की जरूरत है। अधिक आंतरिक जीवन पाने के लिए संघर्ष करने के बजाय कि मैं मेडिटेशन करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे मेडिटेशन नहीं हो रही, मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मैं अपने अंदर अंतर मन में जा नहीं पा रही, अंतर मन में शांति स्थापित नहीं कर पा रही। हम बाहरी को आंतरिक से जोड़ने और आंतरिक को बाहरी से जोड़ने के लिए हर उस संबंध को बनाने के लिए हर तरीका सुझाएंगे जिसके बारे में आप व्यक्तिगत रूप से सोच सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि सभी अनुभव एक हो जाएं। सभी अनुभव, मैंने तुमसे प्यार किया या तुमने मुझसे प्यार किया, एक ही बात है। बात तो हम दोनों के बीच जोड़ने की है और प्यार जोड़ रहा है, नफरत नहीं है। तुमने मुझसे नफरत की या मैंने तुमसे नफरत की, बात एक ही है, बस यहाँ पर जो धागा है वो नफरत का है। जुड़ तो गए हम। और भौतिक और आध्यात्मिक दो के लिए भौतिक और आध्यात्मिक दोनों के लिए एक नृत्य बन जाए जो एक चेतना के भीतर रहने के पुरुष और महिला दोनों पहलुओं को ले जाता है। मतलब आपके अंदर आपके पुरुष और महिला, राइट साइड और लेफ्ट साइड, सकारात्मक और नकारात्मक को एक कर देता है, संतुलन में ले आता है और आपको बाहरी और अंदरूनी जीवन को संतुलन में लाता है। ये जो चीज है, एस्पेक्ट बहुत जरूरी है समझना। इसे पूरी तरह से समझ लो क्योंकि ये आध्यात्मिक रास्ते के कदम कदम पर आपके सामने आएगा। By male and female aspects of living, we are in our distortion, suggesting that the outer or horizontal life is masculine or yang, as this instrument would say in its activity, it's reaching its power to do, whereas that inner vertical life is as the potentiator, that which awaits the reaching, that which does not have the form but which is productive of all form, that which may be called guidance or inspiration और इन्फिनिटी और एटर्निटी। तो यही मैं अभी समझा रही थी। बाहरी जीवन पुरुष, बाहरी जीवन आंतरिक जीवन, पुरुष का जीवन महिला का जीवन, हॉरिजॉन्टल जीवन और उर्द क्या था वो, ऊर्ध्वाधर जीवन, सॉरी, वो सपाट जीवन और ऊर्ध्वाधर जीवन।
ये सभी चीजें एक ही हैं। और इन यांग एंड यिन, और जब तक इनका मिलन नहीं होता, यांग एंड यिन ऐसे मिलता है, जब तक इनका संतुलन में मिलन नहीं होता है तब तक आप संतुलन में नहीं आ पाते। और वो कहता है कि ये बाहरी मर्दाना क्षैतिज जीवन और इसकी गतिविधि, इसकी पहुंच, इसके करने की शक्ति, जबकि आंतरिक ऊर्ध्वाधर जीवन शक्तिवर्धक के रूप में है, जो पहुंचने की प्रतीक्षा करता है। मतलब कि आदमी देता है, औरत लेती। आदमी अपना वीर्य देता है, औरत उस वीर्य को अपने अंदर समाकर एक बच्चा देती है। आदमी औरत की तरफ जाता है, उससे शादी का प्रस्ताव देता है, वो शादी करती है और उसे एक अच्छा घर देती है, एक अच्छा परिवार देती है। आदमी प्रेम की चेष्टा करता है कि मुझे तुमसे प्रेम चाहिए और मैं तुम्हें प्रेम करना चाहता हूं। औरत जो है वो उसको स्वीकार करती है। इस तरह से वो दोनों, औरत हमेशा एक एक बॉटल है, एक ग्लास है, यहाँ से आप पानी डाल रहे हो, चाहे वो नदी से डाल रहे हो, जग से डाल रहे हो, बॉटल से डाल रहे हो, वो पानी जा रहा है। और वो कटोरा या ग्लास जिसमें आप वो पानी इकट्ठा करके पी रहे हो, वो औरत है और ये आदमी है। सूर्य धरती को रोशनी देता है, वो मर्दाना है। धरती रोशनी को प्राप्त करके पेड़ पौधे देती है, जीवन देती है, वो जनाना है। धरती माता है, वो पिता है। शक्तिवर्धक के रूप में है, जो पहुंचने की, इसकी वजह से उसे शक्ति मिलती है, वरना अपने आप में वो कुछ भी नहीं है। जो पहुंचने की प्रतीक्षा करता है, जिसका कोई रूप नहीं है लेकिन जो सभी रूपों में उत्पादक है, जिसे मार्गदर्शन या प्रेरणा या अनंतता या अनंत काल कहा जा सकता है। ये ऊर्ध्वाधर की बात हो रही थी। टू allow the infinite and eternal to become a part of the passing scene, and to allow the passing scene to become stamped with infinity and eternity, is to make that marriage within the life of those aspects which otherwise might fight for dominance. We assure you it is not at all easy to do this. It is much easier to compartmentalize and to do the spiritual practice and to move into the daily mode, and then back into the spiritual practice and back into the daily mode. Yet we may say the fewer transitions that you must choose to make, the more often that you are able to blend the inner and outer being, the more substantial will be your stance, and your point of view will benefit from this unification of inner and outer living. अनंत और शाश्वत को गुजरते दृश्य का हिस्सा बनने की अनुमति देना और गुजरते दृश्य को अनंत काल की मुहर लगाने की अनुमति देना, उन पहलुओं के जीवन के भीतर उस विवाह को बनाना है जो अन्यथा प्रभुत्व के लिए लड़ सकते हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। आध्यात्मिक अभ्यास को विभाजित करना और दैनिक मोड में जाना और फिर आध्यात्मिक अभ्यास में वापस आना और दैनिक मोड में आप वापस आना बहुत आसान है। वो हम आपको विश्वास दिलाते हैं बहुत आसान है कि अपनी ज़िंदगी के हर चीज़ को एक कंपार्टमेंट में अलग करके अपने आध्यात्मिक तौर तरीके जो भी आप करना चाहते हो वो करो। उसके बाद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के पास लौटो और उसके बाद वापस अपने ध्यान लगाने या ईश्वर को याद करने की तरफ वापस आओ। मतलब सुबह ध्यान लगाओ, प्रार्थना करो, फिर अपना दिन भर अपना काम करो। दिन में जितनी बार भी आपको आदत है ईश्वर को याद करने की, 2 मिनट, 5 मिनट, उस तरह से आपको करना है और उसके बाद आपको उसके पास वापस लौटना है। सो
आगे वो कहता है टू अलाउ द इन्फिनिट एंड इटर्नल टू बिकम अ पार्ट ऑफ द पासिंग सीन एंड टू अलाउ द पासिंग सीन टू बिकम स्टैम्प्ड विद infinity and eternity is to make that marriage within the life of those aspects which otherwise might fight for dominance. We assure you that it is not at all easy. अरे सॉरी, मैं ये कर चुकी हूँ, आई एम सो सॉरी. Yet we may say the fewer transitions that you must choose to make, the more often that you are able to blend. Okay, sorry, एक कॉल आ गया था. फिर भी हम कह सकते हैं कि आपको जितने कम बदलाव करने होंगे, जितनी अधिक बार आप आंतरिक और बाहरी अस्तित्व को मिश्रित करने में सक्षम होंगे, आपका रुख उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होगा और आपके दृष्टिकोण को आंतरिक के इस एकीकरण से लाभ होगा. मतलब आंतरिक और बाहरी जीवन के एकीकरण से लाभ होगा. सो व्हाट इज द एसेंस ऑफ यू? व्हाट इज द क्वेश्चन? यू सी, एंड द आंसर इज सो सिंपल. You are not creating yourself. You're simply discovering the self that is there. You do not choose from nothing. You came into this incarnation a very real citizen of eternity. You're simply peeling away layers of distortion to see yourself clearer and clearer, to have a deeper and deeper sense of your own essence. It is a fascinating journey and we are so glad to have you as companions upon it. आपका सार क्या है? आप देखिए, यही प्रश्न है और इसका उत्तर बहुत सरल है कि आपका सार आप हो. आप स्वयं का निर्माण नहीं कर रहे हैं, आप बस वहां मौजूद स्वयं की खोज कर रहे हैं. आप कुछ भी नहीं चुनते. आप अनंत काल के एक बहुत ही वास्तविक नागरिक के रूप में इस यहाँ अवतरित हुए हैं. आप स्वयं को और अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए, अपने स्वयं के सार की गहरी समझ पाने के लिए बस विकृति की परतों को हटा रहे हैं. ये एक दिलचस्प यात्रा है और हमें इसमें आपका साथ पाकर बहुत खुशी हो रही है. कल मेरी एक फ्रेंड मुझे पूछ रही थी, मैंने उससे कहा कि मैं हिप्नोथेरेपी करा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद की हीलिंग करनी. तो बोले क्या जरूरत पड़ी है, क्या जरूरत पड़ी है? ये जिंदगी जी नहीं जाती, तू पास्ट लाइफ में जा रही है, इसको जी ले, छोड़ परे, जो हो गया हो गया. एक तरह से कहा जाए तो वो बहुत ही सही तरीका है जीने का. जो हो गया हो गया. लेकिन उन जिंदगियों और धारणाओं की वजह से इस जिंदगी में आपकी कुछ धारणाएं हैं, आपकी कुछ शारीरिक परेशानियां हैं, कुछ मानसिक परेशानियां हैं, कुछ रिश्तों की परेशानियां हैं. किसी इंसान के साथ किसी जन्म में धोखा हुआ तो इस जन्म में वो किसी पे विश्वास ही नहीं करता. किसी जन्म में डूब के मरा तो इस जन्म में उसे पानी से डर लगता है या पानी से एलर्जी है. मेरी एक फ्रेंड है, उसको पानी से एलर्जी है. नहाने में प्रॉब्लम होती है, उसको पसीना आता है तो प्रॉब्लम होती है, बाहर बारिश में निकल नहीं सकती है. कितने अफसोस की बात है. ये सारी चीजें आपकी कहीं ना कहीं किसी जन्मों से आई हैं. तो वो क्यों आई हैं वो तो जानो और उसका उपचार करो, उसको ठीक करो. खुद को समझो कि मैं ऐसी क्यों हूं और मैं खुद को कैसे ठीक कर सकती हूँ. अपने आप को हील कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो कम से कम पता तो चलेगा. हाँ ठीक है तो है, अब है तो है. कुछ जिंदगियां बहुत, वो मुझसे पूछ रही थी, अच्छा तो तेरा मतलब तेरी सारी जिंदगियों में तूने इतना दुख झेला? मैंने कहा नहीं, बहुत सारी जिंदगियां मेरी बहुत खुशहाल और सुखी रही, लेकिन मैंने वो जिंदगी देखी किसी वजह से. होगी कोई वजह. मैं तो काफी सारी जिंदगियां देखी हैं. तो अभी भी मुझे लगता है कि कम है, अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है. तो उनको नहीं समझ में आता ये क्या करना है करके. छोड़ो परे, भूल जाओ, चलते जाओ, जो हो रहा है होने दो. वो एक नजरिया है जिंदगी देखने का, पर वो अपनी जगह जरूरी है और ये अपनी जगह भी जरूरी है. खुद को जानना, खुद को समझना, खुद का उपचार करना और अपने परछाई स्वतः यानी कि अपने शैडो सेल्फ को पहचान कर उसको सही रास्ते पर लेके आना. या सही रास्ते पर नहीं आ सकता, कोई बात नहीं, आता है गुस्सा, नहीं कर सकते माफ, तो उस शैडो सेल्फ को अपनाना कि ठीक है मेरा है ऐसे, मुझे होता है ऐसा, मुझे है प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, उसके लिए मैं खुद को माफ करती हूँ और मैं जैसी हूं खुद को अपनाती हूँ और खुद से प्यार करती हूँ. वेरी
वेरी इंपॉर्टेंट। एफर्मेशन डेली के लिए सुबह उठ के बोलो या लिखो। जब हम लिखते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। रात को सोते समय भी लिख सकते हो। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एम वॉट एवर आई एम, वो मन में। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। ये पावर ऑफ नाउ वाला सेशन तो अब खत्म हुआ, शुक्र है, बहुत लंबा था। अब मुझे शुरू करना है चैप्टर 8 लॉ ऑफ वन का रिविजन। सो आई विल सी यू, गुड बाय।